Good evening, class. Today we are going to complete of natural resources, and in last video we have discussed the pollutions of regarding soil pollutions and air pollutions, okay, and noise pollutions also, okay. Apart from that, we have discussed their effects and their major roles, their causes, and how they are generally affect the human beings, okay. Apart from that, the pollution is a very dangerous things for the human beings of entire world and also for the animals. So coming to the next point of your NCERT book, we are going to start a new topic, which is the minerals rich in soil, okay. The minerals rich in soil, it means that it is the most important and beneficial part for the human beings. Why? Because if the soil is not well fertilized, it means that our plants will also not grow. ठीक है. सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा प्लांट्स जो है, जिस हम सॉइल पे जहाँ पे उसको प्लांट करने जा रहे हैं, एंड द सॉइल मस्ट बी फर्टाइल. वो जो सॉइल होनी चाहिए बहुत फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए. दैट्स वाई आवर प्लांट्स विल ग्रो अ वेरी साइमल्टेनियसली एंड स्मूथली. हमारा जो पौधा है वो बहुत ही ईजिली वहाँ पे सर्वाइव करेगा और उनमें जो ग्रोथ होगी वो भी बहुत जल्दी होगी. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सॉइल, ओके. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन दैट वी आर गोइंग टू प्लांट प्लांट हियर, ठीक है. अब जैसे हम यहाँ पे कोई प्लांट्स को हम यहाँ पे जनरली स्टेबल कर दिए और ये हमारा सॉइल है, ठीक है. दिस इज अवर सॉइल पार्ट. And most important, we have seen that in our soil there is a loss of or lack of some certain types of minerals. Like that time our soil is also a lack of several types of minerals like iron, like potassium, like magnesium, calcium, sulfur, okay. So that time there is a lack of all the five minerals. It means that our soil will not be fertile, and if you are planting more than trees day by day, definitely your tree will not grow, okay. Why? What is the reason? The reason is that your soil has a certain types of lacking things. इसमें बहुत सारी चीजों की कमी है. The first thing is there is a lack of iron, there is a lack of potassium, there is a lack of magnesium, calcium and sulfur, and these all are the basic elements of plants. अगर plants को ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, it means the plants will not grow. So firstly your soil will also be most important and beneficial part for growing of any kinds of plants. अगर आपको कोई भी plants लगाना है, firstly you have to introduce a new systematic things in your soil. After that your soil will also develop, and if the soil become fertile, definitely your plants will also fertile. सबसे पहली चीज इसमें ये देखी जाती है कि जब भी हम सॉइल में किसी चीज को लाते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सीड, ओके. The first important thing is seed. We are going to plant a seed in the soil. हम सबसे पहले किसी भी सॉइल में उस सीड को हम इंसर्ट करते हैं. आफ्टर दैट सीड क्या होता है जनरली बाय डीइंग द टेम्परेचर की वजह से या पीएच की वजह से या फिर प्रेशर की वजह से, ठीक है. तो ऐसे तीन चार एजेंट्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया या प्रेशर हो गया. ये अगर इंक्रीज होगा, डेफिनेटली आपका जो सीड है वो क्या होगा, ब्रस्ट आउट, ठीक है. तो आपने अगर कोई भी सीड को जब आप सॉइल में प्लांट करोगे, मिट्टी में अगर उसको प्लांट करोगे, दैट टाइम ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, ड्यू टू द हाई प्रेशर, योर सीड विल ब्रस्ट आउट. आपका सीड ब्रस्ट आउट होगा. दैट टाइम्स द स्मॉल सीडलिंग विल अपीयर इनसाइड द सीड्स. एक छोटा सा सीडलिंग जो है बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, जो लगभग ऐसा होगा. एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स इन अ मैच्योर फॉर्म. उसके बाद यही सीडलिंग एक मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इट मींस दैट योर सीड मस्ट बी हाइब्रिड. आपका जो सीड है वो बहुत हाइब्रिड होना चाहिए, एंड योर सॉइल इज आल्सो बी हाइब्रिड इन द फॉर्म ऑफ प्लांटिंग और डेवलपिंग अ न्यू ट्री. अगर किसी भी प्रकार के ट्री को अगर आप तैयार कर रहे हैं तो फर्स्ट योर ट्री शुड बी हाईली developed by using your soil fertility, and your seed is also. Sometimes we have seen that seed is a generally slip stage. seed जो होता है कभी कभी स्लीपिंग स्टेज में जाते हैं. उस स्टेज को हम लोग डॉर्मेंसी स्टेज कहते हैं, ओके. कभी कभी जो हमारा सीड है वो स्लीपिंग स्टेज में जाता है. इट मींस दैट वी आर प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ टेम्परेचर, वी आर प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ वाटर, वी आर प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ प्रेशर also. In spite of that our seed is not bursting out and their seedlings are just not coming out from the seeds. तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं सीड डॉर्मेंसी,
ठीक है। सीड डॉर्मेसी का मतलब होता है कि आप टेम्परेचर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, पीएच, जो भी चीजें हैं आप सारा चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका जो सीड है वो ब्रस्ट आउट नहीं हो रहा है, जिस कारण से उसमें से सीडलिंग बाहर नहीं निकल पा रही है। और अगर सीडलिंग बाहर नहीं निकल के आ पाएगी देन इट डज नॉट ग्रो इनटू द मैच्योर प्लांट, तो वो कभी भी प्लांट नहीं बन पाएगा। सो दैट इज द ऑल द रीजंस ऑफ मैच्योर प्लांट। सो अगर सॉइल हमारा फर्टाइल है, सीड हमारा हाइब्रिड है, बहुत सारे नेसेसरी कंडीशंस होते हैं किसी भी प्लांट्स को तैयार करने के लिए। द फर्स्ट, सीड मस्ट बी वेल क्वालिटीज, आपकी जो सीड है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, इट मस्ट बी हाइब्रिड, इट मस्ट बी हाइब्रिड, हाइब्रिड होना चाहिए। हाइब्रिड इन द सेंस ऑफ कि अगर हम उसको प्लेस करते हैं किसी भी सॉइल में, बहुत ही कम ड्यूरेशंस में उनमें इंक्रीजमेंट देखने को मिले। एंड अगर हम थर्ड बात करते हैं, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड डिजीजेस में सीड्स को किसी भी प्रकार के इंसेक्ट और डिजीजेस से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी हाईली रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड डिजीज। अगर किसी प्रकार के सीड में अगर कुछ भी होल्स हैं या कोई भी इंसेक्ट वगैरह उसमें प्रॉब्लम किए हैं, इट मींस दैट योर सीड इज नॉट अ प्रॉपर्ली टू ग्रो इन योर soil. So that is all the important characters of seed. After that we are going to discuss that when our seed is generally placed in a soil, soil must contain different types of नाइट्रोजन सब्सटेंस इन द सॉइल। अगर सॉइल में नाइट्रोजन की सब्सटेंस वगैरह जैसे नाइट्रोजन में एजिटोबैक्टर होते हैं, ठीक है, राइजोबियम होते हैं, अगर वो सॉइल में प्रेजेंट नहीं होगा, इट मींस योर सॉइल विल नॉट totally fully matured, and if you are planting more than seeds it will not become a mature plant, वो कभी भी एक mature plants नहीं बनेगा। ठीक है, why? Because your soil is not fertile. So depending upon the nature it must be filled with the nitrogen fixation substance in the soil. अगर उसमें nitrogen fixation substance पूरी तरीके से present होगा, it means your soil will also। nitrogen fixation के लिए हम लोग azotobacter देखते हैं और rhizobium देखते हैं, जिसको हम इसमें fix करते हैं तो हमारी soil जो है वो हाइब्रिड बन जाती है और उसमें हम कोई भी प्लांट जब इंट्रोड्यूस करते हैं, इट प्लांट्स टेक अ ग्रोथ एंड बिकम अ मैच्योर प्लांट्स। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट these are the basic minerals of soil components to provide a strength of the plants and also strength to the soil. ये plants को भी strength देते हैं और soil को भी strength देते हैं। So that is the most important part. The first part is iron, second potassium, magnesium, calcium, sulfur. All are the important organic substances are there in the plants to provide a beneficial parts in the way of elements, and it also provide the beneficial part for the organic and inorganic substance, and it also regulate the metabolic activity in plants, and it also takes place in the formation of several types of minerals in the plants. So these are the necessary essential part of your मिनरल थिंग्स इन योर सॉइल। आपके सॉइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर ये नहीं होंगे इट मींस योर सॉइल विल नॉट ग्रो प्रॉपर्ली एंड योर प्लांट्स विल आल्सो नॉट डेवलप। ठीक है, आपका जो सॉइल है वो एडवांस फॉर्म में नहीं बन पाएगा और आपके जो भी प्लांट्स होंगे वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमस इज आल्सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशंस ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी हैव सीन इन सेवरल टाइम्स फॉसिल सेल फ्यूल्स में, हम लोग जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है। In so many times years when the plants and animals are generally die, they generally decomposed in the soil and they become very hard, and they also called as fossil fuels are ancient fossils। हम उनको fossil fuels या फिर ancient fossils के नाम से जानते हैं क्योंकि काफी हजारों साल पहले they are generally die and buried under the soil। मरने के बाद वो soil के अंदर दफन हो गए। दफन होने के बाद after the decompositions of more than, उनके ऊपर बार बार लेयर आती गई और मरे, उनके ऊपर आ गए, फिर उनके ऊपर ऐसे करते करते काफी लेयर्स बनी, दैट आर कॉल्ड द डिकम्पोजिशंस ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। वो धीरे धीरे मरने के बाद सड़ने लगे, खराब होने लगे, उन्हीं को हम डेड और डिकेइंग एनिमल्स कहते हैं। आफ्टर दैट दे फॉर्म अ ह्यूमस, ह्यूमस सब्सटेंस बनाए, एंड ह्यूमस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सॉइल। इफ देयर इज नॉट अ ह्यूमस इन द सॉइल इट मींस योर सॉइल विल नॉट कैप्चर द वाटर कंप्लीटली एंड वाटर विल नॉट रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन योर सॉइल। ठीक है, तो ह्यूमस का होना सॉइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट the soil humus is also formation of soil। soil formation के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। generally we know that soil formation is also takes place by the formation of weathering। step of soil formation में सबसे पहले हम देखते हैं weathering। weathering is the most important functions to
वेदरिंग में हम ये देखते हैं कि जब बरसात वगैरह होते हैं जनरली इट ब्रेक्स डाउन द स्मॉल माउंटेन्स एंड रॉक्स एंड इट आल्सो ब्रेक डाउन द big type of pebbles and stones in a very small part and they become a very soil and it takes lots of time to प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, जब वेदरिंग होती है, मौसम चेंजेस होते हैं, इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, पानी वगैरह गिरता है, जिस कारण से हमारे जो रॉक्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, ये सारी चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो माउंटेन्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने के बाद कई दिनों तक ये एक दूसरी जगह से ट्रांसफॉर्मेशन होते होते छोटे छोटे से सॉइल्स के फॉर्म में तैयार होते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड द वेदरिंग। इसी को हम वेदरिंग कहते हैं। विदाउट वेदरिंग सॉइल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मिनरल्स रिच इन सॉइल। उसके बाद हम बहुत सारे पॉइंट्स को और डिस्कस करना है। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट सॉइल इज डिग्रेडेड ड्यू टू द वेरियस थिंग्स। लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल द सॉइल्स कैन बी डिग्रेडेड बाय फॉलोइंग एक्शंस लाइक the man-made efforts। बहुत सारे man-made efforts है। They are generally throwing their waste material in our home to the soil। डायरेक्ट अपने घर से वेस्ट मटेरियल निकाले और बाहर में फेंक दिए। That also contaminate our soil। Second, एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट में हम बहुत सारे देखते हैं। वी हैव टू यूज लॉट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, है ना, और ये सब एक सॉइल को पॉल्यूट करता है। एसिड रेन, वी नो दैट देयर इज अ contaminations, impurities added in the rain, that is called acid rain। when the chlorine, sulfuric acid and many more things are generally added to the rain, that time acid rain is a very harmful for our environment and human beings also। radioactive waste में भी हम देखते हैं explosive material वगैरह जो हमारे soil के साथ generally mix होते हैं, mix होने के बाद हमारे soil को pollute करते हैं। and industry waste, हम ये सारी चीज़ों को last वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो apart from that we are going to discuss that the most important part of water cycle, because in water cycle we know that water cycle is a important type of function in which suppose there is a rain water। okay, यहाँ पे rain water है। when the heat of sunlight generally falls in our water, दिस इज द हीट ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट का हीट है और ये किसी भी रिवर वाटर के ऊपर जब पड़ता है दैट टाइम द रिवर वाटर आर जनरली इवोपोरेट। ये रिवर वाटर जो है क्या होंगे, इवोपोरेट्स। ठीक है, ये इवोपोरेट्स होके धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इवोपोरेट होकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। आफ्टर दैट दे मेक्स अ स्मॉल टाइप्स ऑफ क्लाउड। ठीक है, ये आफ्टर दैट दे मेक्स अ लॉट्स ऑफ क्लाउड, और ये जो क्लाउड होंगे वो कैसे होंगे, कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसेशंस। ठीक है, वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस द वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में जनरली द हीट रेडिएशंस आर जनरली फॉल्स इन द रिवर साइड एंड आफ्टर दैट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होने के बाद जनरली हमारा जो ये है ये गैसियस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जनरली एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएगा। जनरली व्हेन इट टेक्स अप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ये गैसियस के फॉर्म में ऊपर गया एवोपरेट होकर, या प्लांट्स है तो प्लांट्स से जनरली प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स में जनरली हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की वजह से भी, इससे भी निकल कर ये ऊपर जाएंगे। दे मेक एंड दे स्टिक विद द क्लाउड, ये क्लाउड के साथ स्टिक होते हैं। एंड व्हेन द क्लाउड्स आर गेट कंबाइंड, और ये क्लाउड्स आपस में फिर और ज्वाइंट होते जाते हैं। दीज क्लाउड्स आर मेक जनरली एंड बिकम हैवी। जब ये क्लाउड्स कंडेंस्ड होके, कंडेंसेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस इन वाटर साइकिल। जब ये कंडेंस्ड हो जाएंगे, वाटर साइकिल जब हमारा कंडेंस्ड हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद इनकी साइजेस और इंक्रीज होती जाएगी। एंड व्हेन देयर साइजेस आर जनरली मोस्टली हाई लेवल, जब इनकी साइजेस काफी हाई लेवल की हो जाएगी, दे ब्रस्ट आउट्स एंड जनरली फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। फिर वो पानी के फॉर्म में वो जमीन पे यानी वाटर साइकिल में दोबारा लौट कर आते हैं। सो दीज आर दी वाटर साइकिल एंड इट इज ऑल्सो रिपीटिव साइकिल ऑफ दिस सीजन। ये वाटर साइकिल हमारा हमेशा रिपीटिव होते हैं, जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अगेन I am repeating again. So water cycle means first the heat of light, generally sun temperature are generally falling in the river side, and the river side generally water is generally evaporating in the form of gaseous or transpiration mode by the plants, and after that when the gaseous form are generally went to the sky, they stick with the clouds and become heavy and heavy। जैसे जैसे होंगे ये बहुत heavy और heavier होते जाएंगे, काफी इनकी sizes increase होती जाएगी। and when their sizes are generally increase in the formation of condensation, they are unable to control oneself and they generally burst out or break down। ये burst out हो जाते हैं या तो break down होते
होते हैं, और जब ये ब्रेक डाउन होंगे, आफ्टर द ब्रेक डाउन दे फॉल्स एज अ फॉर्म ऑफ रेन, फिर वो पानी बनकर वापस गिर जाते हैं, एंड दे अगेन दिस साइकिल्स आर आल्सो रिपीट, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे क्लास, and next video we will discuss nitrogen cycle, phosphorus cycle, and many more cycles given in your NCERT book. Okay, till then whatever I have taught you, you all have to clear very clearly. If you get any doubt, you have to give me a, a exact definition of water cycle, and this is your homework also. You have to give me a definition of water cycle, and you will also make a well and neat level diagram of water cycle and send me in my personal WhatsApp. If you have any doubt, you can contact me. Thank you, students.